Hello everyone. In last video, you have learned what is function, advantages of function, and types of function. Let me revise types of functions. There are two types of function. First one is inbuilt function and second one is user-defined function. Now what is inbuilt function? Inbuilt function is already created and stored in header files like printf, scanf, getch are example of inbuilt function or library functions. Now let me also explain what is user-defined function. A user-defined function means the function which are created by users. एग्जाम्पल है मेन फंक्शन. आप void main लिखते हो, void is a return type, but main function के जितने भी आप steps लिखते हो, ठीक है, that is user defined. As per users need, we can change the instruction of main function. So main function is also called as user defined function example. Now inbuilt function and user defined function we already learned. Now next topic is how to create, declare and call user-defined function. To write user-defined function, you have to write following three steps. First one is function declaration. That is also called as function prototype. Second one is function definition. It means function body. और कोड लिखेंगे वो ब्लॉक. ठीक है, फंक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटी कौन कौन से टास्क होंगे वो हम पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखेंगे, तो वो ब्लॉक को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. एंड लास्ट वन इज फंक्शन कॉल. जहाँ पे ये फंक्शन यूज करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, वहाँ पे ये फंक्शन कॉल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल. नाउ फर्स्ट वन इज function declaration. As I said, function declaration is also called as function prototype. We can declare a function as this syntax. Now here, in syntax, first one is return type. The data type returned by this function like integer, float, double, etc. जो आपको पता है कि इंटीजर, फ्लोट, डबल क्या है, ठीक है, वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था कि ऑल आर डेटा टाइप्स. नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शन नेम. फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, print, etc. Next is argument list. It contains arguments that we are going to pass to the function. Like जो हम main function से user defined function में pass करते हैं उसे argument कहते हैं. Later on I will give the example of this, so you all will be clear by that example. Okay? Now the most important thing is function prototype does not contain function body. This prototype gives information to the compiler that the function is going to used in program. So यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, सिर्फ कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसा जो कोई फंक्शंस है उसका हेडिंग है वो यूज्ड होने वाला है मेन प्रोग्राम में. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड इट? नाउ let us take example of function declaration. Suppose we need to declare a function name addition. So here is the syntax to declare addition function which take two argument, that is integer a and integer b, and this function return an integer value. So here I mention return type is integer. So this function prototype provide following information to the compiler. First of all, name of the function. यहाँ पे name of the function क्या है? Addition. Second one is return type of the function. मतलब यहाँ पे a और b का addition होके जो answer return होगा, तो वो answer की type क्या है?
ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीजर होगी क्योंकि हमने जो पैरामीटर पास किए हैं वो भी इंटीजर टाइप के हैं। तो दो इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर टाइप में ही आएगा। एंड द थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स टाइप। यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर a एंड इंटीजर b, मतलब दो वेरिएबल जो है वो एडिशन फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है टू ऐड a एंड b। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? सो दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। होप नाउ यू गेट क्लियर अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन। नाउ फंक्शन डिक्लेयर होने के बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, डिटेलिंग अबाउट दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो है कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके स्टेप्स लिखे होंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो हम अगर प्रोग्राम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फिर मेन फंक्शन आएगा और उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। बट अगर हमें फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले लिखनी है, देन नो नीड टू राइट द फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया है मेन फंक्शन से पहले, ठीक है, तो हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन से क्या होगा, कंपाइलर को पता चलेगा कि ये फंक्शन यूज होने वाला है और उसकी डेफिनेशन जो है वो बाद में लिखी, मेन फंक्शन के बाद में लिखी है। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन ही पहले लिख दी तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है और उसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है, तो ये मेन फंक्शन में यूज्ड हो रहा है। दैट्स इट। नाउ लेट्स go to the second step, that is function definition. Function definition contain body of function that contain block of code and that perform specific task. Syntax is this. So यहाँ पे जो syntax है वो function prototype जैसा ही है। क्या ऐड होगा उसमें, function block, detailing of function. Here function detailing is there included in function definition. Let us take one example. हमने addition function का prototype लिखा था. So now here definition क्या होगा, first of all two arguments लिए हैं a and b of type integer, उसको हम add करेंगे and that store in another variable answer of type integer that we have already declared, right? And at the end, answer will be returned to the main function. Here, answer की data type integer है जो return हो रहा है, इसलिए हमने function prototype में and function definition में integer return type ली है. Fine. Hope you understood what is function prototype and function definition. Now last is function call. When we need to perform a specific task, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एंड इफ वी क्रिएट दैट फंक्शन, that type of function means addition function, subtraction function, then we can call that function at that time. Here I write a code that add two numbers and display addition. Now if I want to divide this program into a function, it means I want to create a function addition and I want to move that two lines sum equal to a plus b and print, जो sum को print कर रहा है वो दो लाइन को मैं फंक्शन में मूव करूंगी, तो वो दो लाइन यहाँ से निकल के कहाँ ऐड हो जाएगी, एडिशन फंक्शन में। अगर मैंने एडिशन फंक्शन बनाया है तो मुझे एडिशन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हियर आई डिक्लेयर एडिशन फंक्शन। नाउ व्हाट हैपन टू दिस, फंक्शन बना दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन की डेफिनेशन बना दी, अब फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कहाँ लिखूंगी, मेन फंक्शन में लिखूंगी। क्या लिखूंगी,
फंक्शन का नाम जिसको मुझे कॉल करना है. सो आई राइट एडिशन फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स a, b. तो यहाँ से क्या होगा, मेन फंक्शन में से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एडिशन फंक्शन में. तो यहाँ से कंट्रोल गोज टू द एडिशन फंक्शन. एडिशन फंक्शन में हर एक स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड में सम प्रिंट होगा, और उसके बाद अगेन कंट्रोल रिटर्न्स टू द मेन फंक्शन. ठीक है, तो अब समझ में आया फंक्शन को कॉल कैसे करना है मेन फंक्शन में. राइट, गॉट इट. सी, यहाँ पे मैंने एडिशन फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या लिखी है, वॉइड, क्योंकि ये जो फंक्शन है एडिशन फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है जो सिर्फ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. सो डिक्लेरेशन टाइम एंड डेफिनेशन टाइम, मैंने उसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी है, वॉइड. वॉइड मीन्स नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज, एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट. नाउ हम एक प्रोग्राम और देखेंगे जिसमें फंक्शंस जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है. एडिशन फंक्शन ही है लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. तो उसको पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. तो डिक्लेयर करने के लिए पहले रिटर्न टाइप इंटीजर, फिर फंक्शन नेम और देन पैरामीटर नेम, दैट इज इंटीजर ए, इंटीजर बी. आफ्टर दैट आई हैव टू राइट मेन फंक्शन. सो मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे, वॉइड मेन, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो यहीं पे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20. अब क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0, थर्ड वेरिएबल जिसमें क्या स्टोर होगा, a और b का एडिशन. नाउ यहाँ पे मैंने एडिशन फंक्शन को कॉल किया है. अभी एडिशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखना बाकी है. और जो सम में है, सम में एडिशन फंक्शन जो है दोनों का सम रिटर्न कर रहा है फंक्शन में से, तो सम में है आंसर आएगा और लास्ट में क्या होगा, सम जो है वो प्रिंट होगा. नाउ लेट अस राइट फंक्शन डेफिनेशन. इंटीजर एडिशन, देन 2 पैरामीटर a और b, देन a प्लस b एडिशन, और एडिशन का जो आंसर है वो ans वेरिएबल में स्टोर होगा. देन ans वेरिएबल जो है वो रिटर्न हो जाएगा. एज आई एक्सप्लेन बिफोर, ans की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए हमने प्रोटोटाइप में फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या लिखी है, इंटीजर. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सम इक्वल टू एडिशन a, b. तो यहाँ पे एडिशन फंक्शंस जो है हमने कॉल किया है. सो एडिशन फंक्शन से क्या होगा, कंट्रोल गोज टू द एडिशन फंक्शन एंड सारे स्टेप परफॉर्म करके ans की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा. अब एडिशन फंक्शन जो है ans वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, तो मेन फंक्शन के पास कोई वेरिएबल होना चाहिए जो ans की वैल्यू को एक्सेप्ट करे, कैच करे. इसीलिए मेन में कौन सा वेरिएबल है, सम वेरिएबल है. राइट, नाउ इंटीजर a एंड इंटीजर b जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में लिखा है वो वैल्यू कहाँ से आएगी. तो इंटीजर a की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो जब हमने फंक्शन कॉल किया था तब ब्रैकेट में हमने जो वैल्यू दी थी a और b, उसकी वैल्यू अब कहाँ पे आ जाएगी, a और इंटीजर a इंटीजर b में भी सेम ऐसा होगा. ठीक है, नाउ हियर हमने जब फंक्शन कॉल करते समय जो वेरिएबल लिए हैं वो वेरिएबल को बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड जो हमने फंक्शन में पैरामीटर में पास किए हैं वो आर्गुमेंट को बोल सकते हैं हम फॉर्मल आर्गुमेंट. Hope you all understood this function. In next video, we will create a function in Turbo C. Okay? If you have any query regarding this video, then you can message me. Thank you.